Hello everyone, welcome to the Study Desire. In today's session, we will be going to study about the life process, and it is a chapter of biology of class 10th. Now, in this chapter, we'll be going to study different processes which are involved for sustaining the life. सो हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में अलग अलग एक्टिविटीज़ और हम कह सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. एज वी ऑल नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं. And also cells perform functions to sustain life. And here we can say that all the cells, they perform some functions so that life can be sustained on earth. Basically all the organism, they obtain food. Okay, as we or the and other animal or any of the organism, they obtain food. Now the food which is they obtain, it is digest and it releases energy. Now this energy is being used by the organism to by for performing certain activities. Now these like nutrient, these are absorbed by cells and it is utilized by the cell to release the energy. Coming towards the next, as cell, okay, cell perform the metabolic activities. Now when the cell perform the metabolic activities, it actually produce some waste, and this waste is known as the metabolic waste. Now these metabolic waste are produced inside the cell, but this cannot be we cannot allow this metabolic waste to accumulate inside the cell, क्योंकि ये जो waste होता है ना, ये metabolic waste है और इनमें toxins भी बहुत होते हैं. So if there is accumulation of these metabolic waste inside the cell will die. So to avoid this, the cell has to dump all these metabolic waste into the blood. Now again coming to the same problem, the blood cannot accumulate inside the blood. This waste cannot be accumulate. If it is like the waste has been accumulated inside the blood, again the waste contains some poisonous chemical. It cause some or we can say it cause some demerits over, या फिर कुछ problems create कर सकता है body में. So that is why these waste material have to be removed from the body. So इसलिए क्या होता है, इस कारण से जो ब्लड होता है ना, ब्लड कहाँ जाता है, किडनी के पास में. अब हम जानते हैं किडनी का फंक्शन क्या होता है. किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड में से जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको निकालना, हटाना, और फाइनली फॉर्म करता है यूरिन. सो हम कह सकते हैं कि द वेस्ट मटेरियल इज नाउ फाइनली डम्प्ड इनटू द ब्लड. नाउ द ब्लड विल go to kidney for purification. Now when the blood has reached to the kidney, what kidney will do? It will remove excess water along with the metabolic waste. Okay, it can be the urea or the ammonia or anything. So this metabolic waste has to be removed from body time to time. So basically the kidney helps to purify the blood and also helps in the formation of the urine. So here we get to know the different functions of the kidney. Okay, and that is, or we can say the function of the kidney is to purify the blood and also it form the urine. So here this waste material excreted outside the body finally. So till now we have seen that cells perform certain functions to sustain life on earth. Now coming towards the next, let us discuss what are all the different functions which are performed by the cell. So here we can say that nutrition. Basically nutrition is a process of obtaining the food. So suppose if we organism or any animal, okay, if it eats the food, it take the food, and that is the nutrition.
Now the food has been utilized to release energy, and that energy is being used by the organism to do certain activities. ये जो फूड खाया है किस ऑर्गेनिज्म में, अब वो फूड का यूटिलाइज होगा बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट होगा, ठीक है, और फिर यूटिलाइज होगा बॉडी के अंदर ताकि एनर्जी रिलीज हो, और फाइनली एनर्जी उससे एनर्जी जो मिलेगी तो उससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. सो हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन के प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जो कि है हमारा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एक्टिविटी कहाँ होती है, इनसाइड द सेल. सो अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं रेस्पिरेशन में, बेसिकली दैट रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज. Okay, now suppose someone has organism has taken the food. Now inside the body the food has been digested, and finally the digested food is taken inside the cell. Now what happens? The food is being oxidized inside the cell to release energy, and this process is known as the respiration process. And in this case the energy which is released is utilized by the body to perform certain activities. Okay, so here we have discussed about the nutrition, and we have also discussed about the respiration. Coming towards the next process, and that is transportation. Transportation, here we can say that in this blood is involved. So basically blood, that means it carries oxygen, carbon dioxide, or some minerals, some vitamins along with it. So suppose अगर हम बात करें कि जो ब्लड लंग्स में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, अब वो कहाँ एंटर कर जाएगा, ब्लड के अंदर. सो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी हम कह सकते हैं जो आरबीसीज है, वो इस ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के हर सेल्स तक डंप करेंगे, दे देंगे, ठीक है. इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. साथ ही साथ में ब्लड में और क्या ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये हमारा तीसरा प्रोसेस है इस चैप्टर का. लास्ट आता है एक्सक्रीशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द वेस्ट. रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट रिमूव होता है हमारी बॉडी से थ्रू द किडनी. सो ये सारी प्रोसेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे. अब इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन को in detail. So let us check over here. Nutrition. Now what is this nutrition? As just now we have discussed, nutrition is actually a process of obtaining food. That means if any organism is obtaining food, that is nutrition. Now finally this nutrition it is of two major types. दो major types होते हैं nutrition के. वो कौन कौन से हैं? Autotrophic nutrition और heterotrophic nutrition. अब यहाँ पे ऑटो से हम क्या समझ सकते हैं, सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन. अब अगर ऑर्गेनिज्म सेल्फ न्यूट्रिशन कर रहा है तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें हम क्या बोलेंगे, द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स ही इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि है प्लांट्स. ओके, अब प्लांट्स क्या करते हैं, खुद ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं by using carbon dioxide, water, in presence of sunlight, and in chlorophyll. So now what plants can able to do, they can able to prepare their own food by using all these things. So इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो plants है वो autotrophs होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. इसीलिए हमने कहा यहाँ पे प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. सो यहाँ तक हमने समझ लिया ऑटोट्रॉफिक के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और प्लांट्स एग्जाम्पल है. तो प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉफ्स हो गए. प्लांट्स क्या हो गए यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ्स. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एंड दैट इज द heterotrophs. हीट्रो दैट मीन्स
other, and trophic, that means a nutrition. Okay, so if the organism is depending on the other organism for obtaining the nutrition, and this type of nutrition is known as a heterotrophic nutrition. Here examples are many. I can say animals, all the animals are involved in it, humans, or some, or all, we can say all microorganisms एक्सेप्ट फ्यू. अब वो कौन से फ्यू है वो हम आगे देखेंगे. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑल द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. और ये जो एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे एनिमल, ह्यूमन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हीट्रोट्रॉफ्स. ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हीट्रोट्रॉफ्स. सो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, न्यूट्रिशन देखा क्या होता है, और हमने देखा दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर. अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में. नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक, हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि हमने अभी बात किया, सारे ही प्लांट्स होते हैं. क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, yes, exactly, you have guessed it right, and that is the presence of the chlorophyll. इस क्लोरोफिल के कारण ही जो प्लांट्स होते हैं ना, इनका खाना खुद बना सकते हैं. तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, all the plants, okay, they possess the chlorophyll. Now this chlorophyll only is responsible for making the food or the preparing the food. अब अगर ये किसी और भी ऑर्गेनिज्म में होता ना, तो फिर वो उनका खाना खुद बनाने के काबिल होता. लेकिन क्योंकि और क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट्स में है, तो प्लांट्स ही हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. अब अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. इट इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड by using the carbon dioxide, water and the sunlight and in presence of the chlorophyll. सो फोटोसिंथेसिस, जो कि हम आई थिंक हम ग्रेड 6 से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में अगर फूड का सिंथेसिस मतलब बनना. ठीक है. अगर लाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस हो रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस होते हैं. सो यहाँ पे देखिए हमने एक इक्वेशन भी लिखी हुई है. इक्वेशन क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, वो उनको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट. ठीक है. तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए उसको, अगर हम एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि प्रिपेयर्ड फूड होता है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्लूकोज इज अ प्रिपेयर्ड फूड ऑफ द प्लांट्स. अभी जो ग्लूकोज है, इस एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कितने चाहिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए यहाँ पे. ठीक है. अब क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन में हो सकता है. हमने यहाँ साफ लिखा है सनलाइट. तो सनलाइट अगर शाम की 6 बजे तक है या 5 बजे तक है, 7 बजे तक है, फोटोसिंथेसिस होगा. ओके. और ये स्पेसिफिकली लीव्स में ही होगा, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल होते हैं. अगर आप पूछेंगे कि फ्लावर में, भाई अगर फ्लावर पिंक कलर का है या ब्लू कलर का है या फिर वाइट या फिर किसी और कलर का है, तो क्लोरोफिल इसमें नहीं है. क्योंकि क्लोरोफिल होता है ना, ये पर्टिकुलर कलर देता है, कौन सा, ग्रीन. तभी हम जानते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि जो जितने भी लीव्स होती है वो कौन से कलर की होती है, ग्रीन. क्योंकि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है. यहां तक क्लियर है. अब क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल इट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड दैट इज C6H12O6. और साथ ही साथ में रिलीज करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और साथ में रिलीज करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो जो ऑक्सीजन है फिर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, हो जाता है. अब हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि जो सनलाइट एब्जॉर्ब होता है ना, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेल के अंदर, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट.
क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो सब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और फाइनली फिर ग्लूकोज फॉर्म होता है बाय यूजिंग दिस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी स्टोमेटा क्या होता है? अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल। सो बेसिकली इफ हियर इज अ लीफ, सो अगर मैं कहती हूँ कि लीफ का ही अपर सब सरफेस है, तो ये जो लोअर सरफेस होगा ना लीफ का, नीचे नीचे पार्ट, यहाँ पे क्या प्रेजेंस होते हैं? क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है? पोर्स हम कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? पोर्स, या फिर होल कह सकते हैं हम। सो बेसिकली स्टोमेटा कहाँ होता है? लीफ के निचले वाले पोर्शन में पाया जाता है। ये होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं। अब ये किस काम में आते हैं? Stomata are the small pores present on the leaf, and it allow the exchange of gases. Very 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 important. तो स्टोमेटा का काम क्या है? अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, वो लीफ के अंदर एंटर कर जाता है, और लीफ में से फिर उस पोर में से बाहर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी देखा कि जो फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, सो वो कहाँ से इसी पोर से बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग बोल सकते हैं हम, या फिर पोर, and like these are the small pores which are present on the lower surface of the leaf and it allows the exchange of gases. अब अगर ये पोर है मान लो, तो कोई ना कोई चीज आउटसाइड तो होगी जो कि इसको रेगुलेट कर रही है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। यस, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पोर है उसके आसपास गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। Now these guard cells are bean shaped structure. सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। ये बीन शेप दिख रहा है सबको, है ना? सो ये बीन शेप स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह से दो होते हैं। अब ये बीच में जो है ना, ये है स्टोमेटल पोर, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय दीज गार्ड सेल्स। ये क्या है? ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, guard cells. So here we have seen that the function of the guard cell is to regulate the opening and closing of the stomata. So ये guard cells अगर पास पे चिपक जाते तो पोर क्या होगा? ये क्लोज, जो ओपन है ये बंद हो जाएगा, और अगर ये इस तरह से दूर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पोर ओपन हो जाएगा. So here we can say that the guard cells regulate the opening and closing of the stomata. And it is very important to note that guard cells or we can say the stomata opens during the daytime only. Important. सो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं? दिन में खुलते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो पोर्स होते हैं ना दिन में खुलते हैं, ठीक है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है, और तभी दिन में परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इसी के साथ में होती है। हमने क्या देखा यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और वो है ट्रांसपीरेशन। Now, transpiration is actually a process of loss of water by the leaves in the form of water vapor. So क्या होगा कि जब ये पोर ओपन हुआ है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, लेकिन साथ ही ऑक्सीजन के साथ में इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीसोफिल सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये मीसोफिल सेल्स क्या होते हैं?
These are the cells, or we can say the plant cell. और ये प्लांट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं लीफ में। और अब लीफ में ये सेल प्रेजेंट है, तो इन लीफ में इन सेल्स के अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। तो मीसोफिल सेल्स क्या होते हैं? प्लांट के सेल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? लीफ में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें हम कह सकते हैं क्या होता है? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, और इसी ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसा होता है, सपोज ये क्या हो गया हमारा? क्लोरोप्लास्ट। वैसे ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अब ये जो अंदर का स्पेस है, ये क्या हो गया हमारा? स्ट्रोमा। इनके अंदर में पाए जाते हैं ग्रेना और थैलेकॉइड। सो अगर हम यहाँ देखेंगे, इनके अंदर क्या होते हैं? ये इस टाइप के डिस्क जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं ये, और यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारे ये पाए जाते हैं, और ये लैमेले के थ्रू कनेक्ट भी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये जो पर्टिकुलर एक एक है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड। और जैसे कि अगर आपने देखा हो 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपी कॉइन, नाउ इफ वी विल अरेंज देम वन ओवर द अदर, अगर हम 10 रुपए की कॉइन हमारे पास 10 है, और हम उन सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, तो किस टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा? समथिंग लाइक सिलेंड्रिकल। एग्जैक्टली। सो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए थैलेकॉइडर एक के ऊपर एक रखे हैं, और इस पूरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड, और इसका नाम दिया गया है ग्रेना। ये क्या हमारा? ग्रेना। और ये पर्टिकुलर जो एक एक अलग अलग डिस्क शेप है, ये क्या है? थैलेकॉइड है। और थैलेकॉइड में ही यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोफिल। सो हमने यहाँ पे क्या देखा? जो मीसोफिल सेल्स हैं वो प्लांट सेल्स होते हैं, लीफ में पाए जाते हैं, और इन्हीं के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि हमने बात किया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। और हमने क्या देखा यहाँ पे कि लीफ क्या बना रहा है? फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज। अभी जो ग्लूकोज होता है ना लीफ में, ये वैसे तो यूटिलाइज हो जाता है प्लांट बॉडी के द्वारा, है ना, ग्रोथ का पर्पज के लिए और जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, but the remaining glucose has been stored in the plant. But how it can be stored? Glucose होता है ना, soluble होता है, so how it can be stored? It can be stored in the form of the starch. मतलब कि सबसे पहले क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, और स्टार्च के फॉर्म में ही ग्लूकोज स्टोर्ड होता है लीव्स में। तो अगर हमें अगर कोई बोलेगा कि जैसे हमें लीफ दी है, और अगर कोई पूछेगा कि यू हैव टू प्रूव दैट द लीफ हैज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉट, so how can we able to say that the leaf has performed the photosynthesis or not? By simply testing for the starch. If suppose the leaf has performed the photosynthesis, that means it has prepared the glucose, and now the glucose has been stored in the form of the starch. So like if we check the presence of the starch, we can say that yes, the leaf has performed photosynthesis. So here the aim of the experiment is to test the presence of the starch in the leaves. यहाँ पे हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हम चेक करेंगे कि लीफ ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया है या नहीं। So, हम यहाँ पे अब देख सकते हैं आयोडीन टेस्ट कह सकते हैं हम इसको, या फिर सिंपली स्टार टेस्ट भी। So, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? किस तरह से परफॉर्म होता है ये आयोडीन टेस्ट? Simply the test, okay, for the leaves or the presence of the starch, we will take a particular leaf, और सबसे पहले हम इस लीफ को क्या करेंगे? बॉईल करेंगे गर्म पानी में। कितने सेकंड्स के लिए? 30 सेकंड्स के लिए। इससे क्या होगा? इससे उसके लीफ के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे ना, वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। ओके, क्योंकि सबसे पहले हमको ऑब्वियसली उसके केमिकल रिएक्शन स्टॉप करने, तभी तो जाके हम पता कर सकते हैं कि पहले से कितना स्टार्च प्रिपेयर्ड हुआ है। अब नेक्स्ट आता है, जब हमने लीफ को बॉईल कर लिया, अब हम उस लीफ को निकालेंगे और हम उस लीफ को डाल देंगे बॉइलिंग इथेनॉल में कुछ मिनट्स के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं?
ताकि हम रिमूव कर सके उसके अंदर का क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होता है? क्लोरोफिल उस लीफ को ग्रीन कलर देता है। अगर हमने इस लीफ ग्रीन कलर को नहीं हटाया तो हम फाइनली जो कलर चेंज आखिरी में होगा हम उसे नहीं नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने जब गर्म पानी से निकाल के स्लीव को कहाँ डाल दिया? बॉइलिंग इथेनॉल में। अब क्या हो गया? उसके अंदर के सारे क्लोरोफिल भी खत्म हो गए। अब आते हैं हम आगे, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद में लीफ को क्या करते हैं? वॉश करते हैं। नाउ द लीफ इज बिन नाउ द लीफ इज बिन वॉश्ड बाय यूजिंग द वाटर एंड नाउ इट इज प्लेस्ड ऑन द टाइल और एनी clean surface. And finally, we are going to add the iodine solution to it. Okay, now the color will change to blue black. Here I can write color change to blue black. तो अगर लीफ के ऊपर फाइनली हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और अगर उस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इसका मतलब कि उसमें स्टार्च है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हाँ, अगर उसमें स्टार्च है इसका मतलब कि लीफ ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया है। सो ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है पता लगाने का कि लीफ ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया है या नहीं, और हम उस टेस्ट को बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ओवर हियर. After a few minutes, a part of the leaf that contained the starch, it turns to blue-black. And yes, we can say that the leaf has performed photosynthesis. Now, let us discuss some of the essential components for the photosynthesis. That means what are essentially required for photosynthesis. So, as we know that carbon dioxide, it is required for photosynthesis. Water, it is also required, sunlight and the chlorophyll. Now, in the process of photosynthesis, what happens? Initially, the sunlight is trapped by the chlorophyll. Trapped by the chlorophyll. Now, the sunlight, it split water molecule. So here we can say that first of all, what will happen? Sunlight has been trapped. Light is trapped in the chlorophyll. Okay, now this light energy, it is been used to split the water molecule into hydrogen and oxygen. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होगा। ठीक है, यहीं से हमें हाइड्रोजन मिलेगा आगे रिएक्शन के लिए, और ये जो ऑक्सीजन है ये लिबरेट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होगा इसके बाद में? जब सनलाइट, सबसे पहले लाइट ट्रैप हुआ, ठीक है, इसके बाद में ये लाइट एनर्जी यूज होगी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए, और फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एंटर करता है कहाँ से? स्पोर, जो पोर हमने स्टोमेटा देखा, ठीक है, उससे इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या फॉर्म करेगा? C6H12O6 एंड दिस इज ओनली द glucose, which is the prepared food for the plant. So इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सो अगर हम बात करेंगे what all we have covered in our today's session summary. So we have seen all different life processes, that means the nutrition, the respiration, the transportation and the excretion. इसके बाद में हमने क्या देखा? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर हम कह सकते हैं इसके पहले हमने देखा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के हमने दो टाइप्स भी देखे, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है इसके बाद में हमने क्या देखा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
को हमने डिटेल में पढ़ा। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इसी के अंदर में हमने देखा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा। और फाइनली हमने क्या देखा, आयोडीन टेस्ट भी, आयोडीन टेस्ट। So this was all about the session. Hope you understood. Thank you everyone.